Hello guys, this is Zoologist AK and I am here to talk about prokaryotic homologous recombination, and in this video I will talk about E. coli, where these different types of proteins promote homologous recombination and play a major role in the double strand break repair pathway. And here I will talk RAC BCD pathway and RAC A, that is a strand exchange protein, and RUVA and RUVB, that are branch migration proteins, and then I will talk about RUVC, that is the resolving protein in case of E. coli. So before discussing this prokaryotic homologous recombination, we will discuss about the contrasting mechanism or the different types of mechanism that play a role in both eukaryotic and prokaryotic homologous recombination. I have already talked about this eukaryotic protein mechanism that play major role in homologous recombination in Saccharomyces cerevisiae and in case of humans, and today we will discuss these proteins that play major role in the homologous recombination in case of E. coli, that is the prokaryotes. As you can see here, RAC A protein, it is a homologous DNA protein, or it pairs the two homologous DNA. As we know, homologous DNA is the DNA that consists the sequence similarity, or that consists the sequence in the correct or in the same position in both paternal and maternal chromosomes, and these are the proteins that cause strand invasion. This is RAC A protein in case of E. coli and RAD51 in case of eukaryotes. And introduction of double strand break, there is no particular protein present in E. coli that can cause this double strand break, and in case of eukaryotes, during meiosis state, there is the protein SPO11. I have already talked about this in eukaryotic homologous recombination. This cause the programmed double strand break in the E. coli, in the cell cycle stage or in the synthesis stage of meiosis. Then the processing of these DNA breaks to generate single strand tails or 3' hydroxyl tail for invasion is done by RAC-BCD, that act as a helicase and nuclease in case of E. coli, and MRX protein called RAD50, RAD58 and RAD60 nuclease in case of eukaryotes. And assembly of strand exchange proteins is done by RAC BCD and RAC FOR in case of E. coli, and RAD52 and RAD59 in case of eukaryotes. Holiday junction recognition and branch migration is done by RUVAB complex in case of prokaryotes, and in eukaryotes this is not well characterized till now. And resolution of holiday junction is done by RUVC protein, and in case of eukaryotes it is done by multiple proteins that form a complex like RAD51C, XRCC3, a complex VRN and BLM. They play major role in the resolution of holiday junction in case of eukaryotes. So let's begin with this E. coli prokaryotic homologous recombination, and let's understand the different function or mechanism of these different types of protein during the different step of homologous recombination. You not need to wonder about this HO or for mating type switching. I will upload a separate video on this mating type switching, because it is also an important mechanism when we study about recombination process or recombination of DNA. So first of all, we will discuss the RAC BCD helicase or nuclease processing in case of E. coli. As we know, DNA with single strand DNA extension or tail are preferred substrate for initiating strand exchange between regions of homologous sequence. So this RAC BCD complex और दिस रैक BCD कॉम्प्लेक्स क्या जनरेट करता है, सिंगल स्ट्रैंड DNA जनरेट करता है. इट हैज़ बोथ property helicase and nuclease. Other function of this RAC BCD is it load the RAC A
और रैक ए प्रोटीन। और रैक ए प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, जो हमने अभी डिस्कस किया, वो होता है स्ट्रैंड एक्सचेंज करना। किस पे, जब सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एंड्स और 3 प्राइम OH एंड जब क्रिएट हो जाते हैं तो उनको स्ट्रैंड एक्सचेंजन करवाने के लिए रैक ए कॉम्प्लेक्स वहाँ पे लोड किया जाता है। और ये किसके थ्रू किया जाता है, रैक BCD कॉम्प्लेक्स के थ्रू। और BCD कॉम्प्लेक्स हेलिकेज की तरह भी एक्ट करता है, न्यूक्लियस की तरह भी एक्ट करता है। हेलिकेज की तरह एक्ट करके डबल स्ट्रैंड ब्रेक क्रिएट करेगा, न्यूक्लियस की तरह एक्ट करके सिंगल स्ट्रैंड जो एंड हैं और टेल्स हैं डीएनए में वो जनरेट करेगा। तो जो रैक BCD कॉम्प्लेक्स होता है, इसकी 3 सब यूनिट्स हैं, रैक B, C एंड D। ये कॉम्प्लेक्स बाइंड करता है डीएनए पे एट द साइट ऑफ डबल स्ट्रैंड ब्रेक। डबल स्ट्रैंड ब्रेक जहाँ पे क्रिएट होता है उस साइट पे ये बाइंड करता है, जैसे कि आप देख सकते हो पिक्चर में यहाँ पे। तो फिर ये ट्रैक करता है डीएनए को, किसकी हेल्प से, ATP हाइड्रोलाइसिस की हेल्प से। और जो एक्टिविटी है रैक BCD की, वो कंट्रोल की जाती है एक स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस के थ्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं, काई साइट बोलते हैं, जो कि यहाँ पे ग्रीन कलर में शो की है, काई साइट। ये जो काई साइट है ये स्टैंड करती है, C स्टैंड फॉर क्रॉसओवर, H स्टैंड फॉर हॉटस्पॉट एंड I स्टैंड फॉर इंस्टिगेटर। तो ये क्या है, क्रॉस ओवर हॉटस्पॉट इंस्टिगेटर। और इट इज़ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ सीक्वेंस दैट कोज द or that cause the modification of DNA strand or this RAC BCD complex and affect the activity of this RAC BCD helicase nuclease complex। रैक B और रैक D जो होते हैं, रैक BCD में रैक B और D, रैक B और D दोनों की हेलिकेज एक्टिविटी होती है और दोनों ही ATP हाइड्रोलाइसिस के थ्रू डीएनए को मेल्ट करते हैं और अनवाइंड करते हैं डीएनए के बेस पेयर्स को। और जो रैक B जो होता है, अगर मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली रैक B की बात करूँ तो इसकी 3 प्राइम टू 5 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी होती है। और ये मल्टी फंक्शनल न्यूक्लियस डोमेन कंसिस्ट करता है जो डीएनए को डाइजेस्ट करता है, जैसे ये रैक B प्रोटीन मूव करता है अलोंग द डीएनए स्ट्रैंड। और जो रैक D की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो उसकी होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम हेलिकेज एक्टिविटी। और जो रैक C होता है वो रिकॉग्नाइज करता है यहाँ पे काई साइट को। एग्जाम्पल है यहाँ पे काई सीक्वेंस का, वो होता है 5 प्राइम GCTGGTGG 3 प्राइम GCTGGTCC। ये सीक्वेंस साल्मोनेला की मैं बात करूँ तो उसमें प्रेजेंट होता है ये काई सीक्वेंस। A question arise, how does this RAC BCD complex multifunctional machine work together to move along DNA। तो वो समझते हैं कि कैसे ये फंक्शन करती है और कैसे मूव करती है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई हैं और वो स्टडीज़ जो की गई हैं वो बेस्ड है सिंगल मॉलिक्यूल टेक्निक्स पे, जो शो करती हैं कि जो रैक B होता है वो रैक D होता है, जो कि आप देख सकते हो रैक D यहाँ पे पिक्चर में फर्स्ट में ग्रीन कलर में शो किया गया है और ब्लूइश कलर में यहाँ पे रैक B शो किया गया है। तो यहाँ पे जो रैक B और रैक D हैं दोनों हेलिकेज की तरह एक्ट करते हैं, तो इनको हम मोटर्स प्रोटीन भी बोलते हैं। तो ये मोटर्स मूव करते हैं इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं, किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं है और कोई मेडिएटर नहीं है इनका, इंडिपेंडेंटली मूव करते हैं अपोजिट स्ट्रैंड पे डीएनए डुप्लेक्स के। और दोनों की डिफरेंट स्पीड होती है, जैसे कि आप देख सकते हो रैक जो D है वो फास्ट मूव करता है और रैक B जो है वो स्लो मूव करता है। तो ये टुगेदर these रैक B और रैक D is shown in green और रैक B shown in ब्लू कलर। तो जो ये रैक B और रैक D हैं ये दोनों ही ड्राइव करते हैं रैक BCD कॉम्प्लेक्स को डीएनए के अलोंग इस रेट पे कि ये इतनी फास्ट मूव करें कि 1000 बेस पेयर पर सेकंड ये मूव कर सकें। तो इनकी जो मूवमेंट रेट है और जो मूव करने का जो रेट है डीएनए स्ट्रैंड पे वो है 1000 बेस पेयर पर सेकंड। जो काई साइट है यहाँ पे, जो काई साइट है वो एक मोलिकुलर थ्रोटल की तरह एक्ट करती है जो रेगुलेट करती है एक्टिविटी इन हेलिकेज की। कौन सी हेलिकेज, रैक B और रैक D हेलिकेज।
और स्पीड करती है किसकी, डीएनए ट्रांसलोकेशन की स्पीड को बढ़ाती है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, यहाँ पे शो किया गया रैक बी सी डी प्रोटीन जो एंटर करता है डीएनए मॉलिक्यूल में, या तो वो ब्रोकन एंड से मूव एंटर करता है या फिर काई साइट उसकी ओरिएंटेशन डिसाइड करती है। बट टू मोटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स, टू मोटर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स क्या है, रैक डी जो कि ग्रीन कलर में है और रैक बी जो कि यहाँ पे ब्लूइश कलर में है। दोनों मोटर्स जो हैं प्रोटीन के वो एंटर करते हैं डीएनए मॉलिक्यूल पे और इक्वल रेट पे मूव नहीं करते, ये बात हम कर चुके हैं। रैक बी जो है वो कीप अप करने की कोशिश करता है और एक लूप जो है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का 3 प्राइम एंड से वो बल्स आउट हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं वो बल्स आउट हो जाता है अहेड ऑफ द कॉम्प्लेक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जो रैक बी और रैक सी है वो हेलिकेज है, तो क्या करेंगे, डबल स्ट्रैंड डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करेंगे। जब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म हो जाएंगे जो तो 3 प्राइम एंड वाला जो स्ट्रैंड है वो बल्स आउट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स के फ्रंट में। कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पे, रैक सी और रैक बी और रैक डी कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा, जब यहाँ पे काई साइट का एनकाउंटर होगा और काई साइट एनकाउंटर की जाएगी तो जो रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स है वो पोज कर जाएगा फॉर ए फ्यू सेकेंड और पोज करेगा फिर कंटिन्यू करेगा। पर जब वो पोज करता है ना तो उस पोजिंग करने के टाइम पे 3 इवेंट्स ओकर होते हैं जो एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं इस कॉम्प्लेक्स से। कौन से कॉम्प्लेक्स, रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को। फर्स्ट होता है द लूप्ड आउट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए इज पुल्ड और रील्ड बैक। उसको जो लूप ग्रोथ यहाँ पे हो रही है जैसे कि हम देख रहे हैं, तो ये जो लूप्ड आउट सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वो पुल्ड कर लिया जाता है और रील्ड बैक कर लिया जाता है बाय रैक बी कॉम्प्लेक्स के थ्रू। जैसे कि हम देख सकते हैं ये यहाँ पे हमारा ब्लू कलर में रैक बी है, तो ये यहाँ पे हमारा लार्ज जो लूप है वो शो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट लूप शो रहा है। तो ये जो लार्ज लूप है उसको ये क्या कर लेता है, वापस पुल्ड कर लेता है। और जो रैक बी है वो फर्स्ट मोटर यहाँ पे क्या करता है, लीड करता है कॉम्प्लेक्स को, रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स को। फिर सेकंड जो चेंज आता है वो एक कन्फर्मेशनल चेंज, जिसकी वजह से रैक डी जो सब यूनिट है वो अनकपल हो जाती है, कपलिंग हो जाती है। यहाँ पे किसकी अनकपलिंग होती है, रैक डी सब यूनिट की। यहाँ पे शो कर रखा है पोजिंग, उसके बाद ये स्मॉल शो कर रखी है कि भी वो उसको पुल्ड ऑन कर रहा है। फिर रैक जो डी है जो कि ग्रीनिश कलर में शो हो रहा है वो क्या कर रहा है, अनकपलिंग हो रही है यहाँ पे रैक डी को सब यूनिट की। फिर जो न्यूक्लियस एक्टिविटी है रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स की वो अल्टर हो जाती है क्योंकि कन्फर्मेशनल चेंज हो गया इस कॉम्प्लेक्स में। फिर न्यूक्लियस नो एक्टिविटी जो अल्टर होने की वजह से रैक बी सी डी जो है मूव करता है इनटू द सीक्वेंस बियॉन्ड द साइट, काई साइट, वो काई साइट से बियॉन्ड मूव करता है। और जो न्यूक्लियस है वो अब क्लीव नहीं कर पाएगा डीएनए को क्योंकि उसकी एक्टिविटी तो अल्टर हो गई है। तो यहाँ पे न्यूक्लियस उस स्टैंड को नहीं क्लीव कर पाएगा जिसकी पोलरिटी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम पोलरिटी है। अपोजिट डीएनए स्ट्रैंड जो होगा जिसकी पोलरिटी होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, वो क्या करा जाएगा, वो क्लीव किया जाएगा। वो क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्लीव किया जाएगा फ्रीक्वेंटली बिफोर द काई साइट हैज़ एनकाउंटर्ड, जिसकी वजह से यहाँ पे एक डीएनए डुप्लेक्स फॉर्म होगा जिसका क्या होगा, 3 प्राइम एंड पे तो एक्सटेंशन हो रखी होगी, है ना, और वो एक्सटेंशन टर्मिनेट करेगी किसके साथ, काई साइट के साथ वो टर्मिनेट करेगी 3 प्राइम एंड पे, काई साइट के साथ वो 3 प्राइम एंड पे क्या करेगी, टर्मिनेट करेगी। ये स्ट्रक्चर जो होता है ये आइडियल होता है असेंबली करवाने के लिए, किसकी असेंबली, रैक ए की असेंबली, ताकि स्ट्रैंड जो एक्सचेंज है वो स्टार्ट हो सके। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि जो रैक बी सी डी प्रोटीन है वो एंटर करेगा डीएनए में, या तो वो ब्रोकन एंड से एंटर करेगा या फिर वो काई साइट के थ्रू एंटर करेगा। जो काई साइट है वो बस एक ही ओरिएंटेशन में यहाँ पे फंक्शन करेगी। जैसे कि हम देख रहे हैं ये जो डीएनए स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें काई साइट प्रेजेंट है, पर जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसमें काई साइट प्रेजेंट नहीं है। तो जो काई साइट की ओरिएंटेशन है वह एक ही ओरिएंटेशन है उन, तो जो काई साइट है वो इस तरह ओरिएंटेड है कि वो बस क्या मॉडिफाई करेगी, यहाँ पे रैक जो बी सी डी कॉम्प्लेक्स है उसको मॉडिफाई करेगी, ठीक है, क्योंकि
जब जैसे ही रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स मूव करेगा और वो एनकाउंटर करेगा स्काई साइट को, तभी वो क्या कर जाएगा, वो मॉडिफाई कर जाएगा, उसकी न्यूक्लियस एक्टिविटी अफेक्ट हो जाएगी। तो जब रैक बी सी डी मूव करता है राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राइट टू लेफ्ट वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में जब यहाँ पे रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स मूव करेगा तो रैक बी सी डी एंजाइम, दो डीएनए हेलिकेज है, रैक डी और रैक बी हेलिकेज है, जो कि यहाँ पे शो किए गए हैं। रैक डी हमारा ग्रीन कलर में और रैक बी हमारा ब्लू कलर में शो किया गया है। वो रैपिडली मूव करेंगे किस पे, 5 प्राइम एंड पे, 5 प्राइम एंड पे तो वो रैपिडली मूव करेंगे, और जो 3 प्राइम एंड होगा उस पर वो स्लो मूव करेंगे। और जो 3 प्राइम एंड है वो क्या है, एक एंडिंग स्ट्रैंड है, 3 प्राइम एंड एंडिंग स्ट्रैंड है, तो उस पर वो स्लो मूव कर रहे हैं और फास्टली मूव किस पे कर रहे हैं, वो हमारे 5 प्राइम एंड पे, तो इस पे वो स्लो मूव कर जो हमारा मूविंग है वो यहाँ पे स्लो और फास्ट हो रही है। तो यहाँ पे फिर क्या होगा, तो मूविंग यहाँ पे फास्ट हो रही है, यहाँ पे स्लो हो रही है। तो उसके बाद क्या होगा हमारा, जब ये दोनों सब यूनिट जब डिफरेंट स्पीड से मूव करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो रैक डी है वो फास्टली मूव करता है, रैक डी जो है हमारा फास्टली मूव करता है, रैक बी जो है हमारा स्लो मूव करता है। तो जो रैक बी है वो अक्यूमुलेट करेगा एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए लूप, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये लूप फॉर्म हो रहा है, पोजिंग हो रही है, फिर लूप फॉर्म हो रहा है, फिर मॉडिफिकेशन हो रही है। तो यहाँ पे लूप फॉर्म कर देगा रैक बी। क्यों फॉर्म करता है रैक बी लूप, क्योंकि ये स्लो मूविंग प्रोटीन सब यूनिट है। तो इस कोई चीज़ यहाँ पे हेलिकेज की तरह भी एक्ट कर रही है, और वो क्या है, रैक बी और रैक डी, हेलिकेज की वजह से एक्ट करने की वजह से दोनों वो सिंगल स्टैंड कन्वर्ट डीएनए, डबल स्टैंडेड डीएनए को सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, पर वो स्लो मूव हो रहा है, इस वजह से वो सिंगल स्टैंड डीएनए क्या हो जाएगा, लूप फॉर्म कर जाएगा ना, इकट्ठा हो के, क्योंकि वो कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के थ्रू डबल स्टैंड ब्रेक तो बना नहीं रहा, तो वो लूप फॉर्म कर देगा यहाँ पे। तो जब एंजाइम एनकाउंटर करेगा यहाँ पे काई साइट को, जब काई साइट एनकाउंटर होगी तो उसके बाद क्या होगा, ये लूप जो है वो रिल्ड इन कर दिया जाएगा, पुल्ड इन कर लिया जाएगा, जो ये लूप है वो पुल्ड कर दिया जाएगा, लूप शॉर्टनिंग हो जाएगी, जो कि यहाँ पे शो किया गया लूप शॉर्टनिंग होगी, क्योंकि वो लूप पुल्ड इन कर दिया गया है। और इसका जो 3 एंड ए है वो क्या कंटेन करेगा, अब 3 प्राइम एंड वो कंटेन करेगा अब काई साइट, जो कि हमें यहाँ पे शो रही है। तो ये जो यहाँ पे पोजीशन है और ये जो असेंबली है, ये असेंबली बहुत ही नेसेसरी है रैक ए प्रोटीन की बाइंडिंग के लिए। एक क्वेश्चन और उठता है कि कैसे ये जो 3 सब यूनिट हैं रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स की 3 सब यूनिट जो हैं वो कैसे फंक्शन करती हैं, और इनकी जो एक्टिविटी है वो कैसे चेंज होती है जब वो एनकाउंटर करती हैं किसको, काई साइट को एनकाउंटर करती हैं। ठीक है, तो कैसे उनकी एक्टिविटी चेंज होती है। जो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स है यहाँ पे किसका, रैक बी सी डी का, जो कि इस पिक्चर में शो किया गया है, ये क्या एक ट्रेंगुलर शेप का है, और इसमें जो डीएनए यहाँ पे शो किया गया है वोलेट कलर में, वो एंटर कर रहा है टॉप पॉइंट से, इस ट्रेंगुलर शेप का जो कॉम्प्लेक्स है रैक बी सी डी, उसमें वो टॉप साइड से एंटर कर रहा है। तो जो डीएनए एनकाउंटर करेगा वो एनकाउंटर करेगा यहाँ पे पिन शेप्ड, किसको, पिन शेप्ड स्ट्रक्चर को। जो रैक सी जो है यहाँ पे, रैक जो सी सब यूनिट है वहाँ उसके स्ट्रक्चर से प्रोट्रूड हो रहा है, बाहर निकल रहा है, जो स्प्लिट कर देगा इस डीएनए डुप्लेक्स को और गाइड करेगा 2 इंडिविजुअल स्ट्रैंड को डीएनए के, ताकि उस पे कौन बाइंड हो उसके, 2 मोटर प्रोटीन बाइंड हो उसके, जो कि इस कॉम्प्लेक्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है। वो कौन से हैं, रैक बी और रैक डी। जो यहाँ पे रैक डी है वो क्या है हमारा, ग्रीन कलर में है, और जो ब्लू कलर में है वो क्या है हमारा, रैक बी है, और ये जो है ये हमारा रैक सी है, और इस रैक सी में हमारा पिन है, ये प्रोट्रूड हो रहा है, ये सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट करेगा डीएनए को, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को, फिर जो सिंगल स्टैंड डीएनए उन पे रैक बी और रैक डी बाउंड हो जाएंगे। तो रैक सी जो सब यूनिट है वो चैनल करती है 3 प्राइम एंड और 3 प्राइम स्ट्रैंड को किसमें, रैक बी मोटर में, एंड 5 प्राइम स्ट्रैंड, 3 देखो 5 प्राइम स्ट्रैंड को किस पे, रैक डी पे, और 3 प्राइम स्ट्रैंड को किस पे, रैक
बी प्रमोटर प्रोटीन पे। तो यहाँ पे रेक सी एक हेलिकेज नहीं है, बल्कि वो एफिशिएंसी को इंक्रीज कर रहा है दो हेलिकेज सब यूनिट्स की, किसकी, रेक बी और रेक सी की, बाय बाइंडिंग ऑफ दिस रेक डी ऑन दिस 5' स्ट्रैंड और दिस 3' स्ट्रैंड पे रेक बी हेलिकेज को बाइंड करके। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, जो 3' एंड टेल होती है ना डीएनए की, वो फीड कर दी जाती है अलोंग ए ग्रुप, जो अमर्ज हो जाएंगी न्यूक्लियस की एक्टिव साइट पे। और न्यूक्लियस की एक्टिव साइट कौन सी है, रेक बी सब यूनिट पे, बिफोर एनकाउंटर ऑफ काई साइट। तो ये जो है, जो यहाँ पे 3' एंड टेल है, जब वो एंटर करेगी यहाँ पे रेक बी सब यूनिट में और उसको एनकाउंटर करेगी, तो वो एनकाउंटर काई साइट के एनकाउंटर से पहले होगा, ताकि ये जो स्ट्रैंड है वो एफिशिएंटली प्रोसेस्ड किया जा सके और डिग्रेड ना किया जा सके। और जो 5' एंड है डीएनए टेल का, वो मूव करेगा न्यूक्लियस के पीछे, है ना, न्यूक्लियस मतलब कि जो एक्टिव साइट है उसके पास्ट वाले फेज में वो मूव करेगा, अपॉन लिविंग द रेक डी मोटर, बट डाइजेस्टेड लेस फ्रीक्वेंटली देन द 3' टेल, क्योंकि ये compete करता है किसके साथ, 3' स्ट्रैंड के साथ compete करता है। जब एनकाउंटर कर लेंगे दोनों स्ट्रैंड किसको, काई साइट को जब एनकाउंटर कर लेंगे, सॉरी स्ट्रैंड नहीं, कॉम्प्लेक्स जब काई साइट को एनकाउंटर कर देगा, तो क्या होगा यहाँ पे, रेक सी जो है, रेक सी सब यूनिट जो है, ये हमारी क्या है, रेक सी। तो ये रेक सी क्या करेगी, रिकॉग्नाइज करेगी और बाइंड करेगी टाइटली डीएनए की साइट पे। और जैसे ही ये 3' जो एंड है वो बाउंड होगा, ये प्रिवेंट कर देगी न्यूक्लियस की एंट्री। ये बाइंडिंग प्रिवेंट करती है डाइजेशन किसका, 3' एंड का, प्रमोट करती है डाइजेशन किसका, 5' टेल का, बाय रिमूविंग इट्स कंपिटिटर क्या है, 3' एंड का, 5' एंड और 5' टेल। यहाँ पे जो सिंगल स्टैंड डीएनए टेल जनरेट होती हैं वो यहाँ पे कोट की जानी चाहिए रेक ए प्रोटीन के साथ के थ्रू, जो रिकम्बिनेशन प्रोसेस आके फर्दर कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे कुछ सिंगल स्टैंड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स भी बाइंड कर जाते हैं डीएनए पे, टू इंश्योर दैट रेक ए रेदर दैन एसएसबी बाइंड दी सिंगल स्टैंड टेल्स। और रेक बी सी डी जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है इस रेक ए प्रोटीन के साथ प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शंस के थ्रू, और वो लोड कर देता है इस ये रैक ए को बिटवीन द न्यूक्लियस डोमेन ऑफ रैक बी सब यूनिट एंड रैक ए प्रोटीन, और सर्व्स टू लोड रैक ए ऑन द डीएनए विथ 3' एंड टेल। लेट अस अंडरस्टैंड काई साइट जो है वो कंट्रोल करती है रैक बी सी डी को। जैसे कि मैं पहले बात कर चुकी हूँ, जो काई साइट होती है वो कंसिस्ट करती है एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, 8 न्यूक्लियोटाइड काई साइट होती है, जी सी टी जी जी टी सी सॉरी जी जी वो कंसिस्ट करती हैं, और वो एक ही ओरिएंटेशन में होती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कैसे वो कंट्रोल करती हैं रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स की एक्टिविटी को, तो जो डीएनए है, हमें पता है डीएनए बिटवीन द डबल स्ट्रैंड ब्रेक जहाँ पे हमारा रैक बी सी डी जो कॉम्प्लेक्स है वो एंटर करता है, एंड द काई साइट वो कट कर दी जाती है डीएनए कहाँ पे, डबल स्ट्रैंड ब्रेक के बीच में एंड द काई साइट के बीच में, जहाँ पे हमारा रैक बी सी डी एंटर करता है, वो कट कर दी जाती है स्मॉल पीसेज में एंजाइम्स के थ्रू। कौन से एंजाइम्स, ये हेलिकेज एंजाइम रैक बी और रैक डी हेलिकेज एंजाइम्स के थ्रू वो कट कर दी जाती है, इसीलिए वो अवेलेबल नहीं होती रिकम्बिनेशन प्रोसेस के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट डीएनए सीक्वेंस जो यहाँ पे रैक बी सी डी के थ्रू मिट किए जाते हैं आफ्टर इट्स एनकाउंटर विद काई साइट, वो प्रिजर्व किए जाते हैं रिकम्बिनोजेनिक और इन्हें रिकम्बाइनोजेनिक स्टेज में और सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में, और वो स्पेसिफिकली लोड कर दिए जाते हैं फिर रैक ए के थ्रू। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे काई साइट कितना मेजर रोल प्ले कर रही है रिकम्बिनेशन में, क्योंकि अगर काई साइट
का जो एनकाउंटर नहीं होगा रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स के थ्रू, तो वहाँ पे होमोलोगस रिकम्बिनेशन नहीं होगा, क्योंकि जो रैक बी सी डी है वो तो स्मॉल स्मॉल स्ट्रैंड में कट कर देती है डीएनए को ताकि होमोलोगस रिकम्बिनेशन ना हो। तो काई साइट क्या कर रही है, एलिवेट कर रही है किसको, रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी को। तो ये पिक्चर हमें जो शो करी है, ये शो करी है एक्शन किसका, काई का। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं डोनर डीएनए, लीनियर डीएनए, रेसिपिएंट क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए है। यहाँ पे रिलेटिव रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो की गई है। तो जो रिकम्बिनेशन इवेंट यहाँ पे शो किया गया है, वो शो किया गया है जब डीएनए जो है और जो एक्सचेंज हो रहा है एक लीनियर डीएनए सेगमेंट के बीच में ट्रांसडक्शन या कंजुगेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड द बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो एक्सचेंज हो रहा है उन दोनों के बीच में यहाँ पे एक्सचेंज शो किया गया है। ये जो एक्चुअल डीएनए सेगमेंट है वो यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग डीएनए सेगमेंट होगा जो एक्चुअल में इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम फेज ट्रांजैक्शन की बात करें तो वो यहाँ पे 80 किलो बेस जो सेगमेंट होता है डीएनए का वो होता है। अगर ई कोलाई की बात करें तो 5 MB यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जहाँ पे काई साइट है वहाँ पे 10x मीन्स 10 गुना ज़्यादा हमारा रिकम्बिनेशन प्रोसेस हो रही है, और जैसे जैसे काई साइट से दूर जाता जा रहा है तो वहाँ पे क्या है, हमारी जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है रिकम्बिनेशन की वो कम होती जा रही है। क्यों होती जा रही है, अगर यहाँ पे हमारा रैक बी सी डी कॉम्प्लेक्स बाइंड करेगा तो जो डीएनए है उसको स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंट में कट कर देगा, तो रिकम्बिनेशन नहीं होगी ए और इस स्मॉल ए के बीच में, और इनके बीच में भी थोड़ी मीडियम जो है वो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी ओकर होगी। पर यहाँ पे अगर बात करें जो काई साइट के पास में जीन प्रेजेंट है जो कि कैपिटल सी और स्मॉल सी है के बीच में अगर हम रिकम्बिनेशन देखें तो वो सबसे ज़्यादा होगी। तो ये हमें शो करता है कि काई साइट एक मेजर रोल प्ले करती है रिकम्बिनेशन प्रोसेस में। नाउ अब बात आती है कि रैक ए जो प्रोटीन है वो कैसे असेंबल करेगा सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे, और वो कैसे प्रमोट करेगा स्ट्रैंड इन्वेजन। तो जो रैक ए है वो एक सेंटर प्रोटीन होता है और मेजर रोल प्ले करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन में। ये जो मेंबर है उन एंजाइम्स का जो स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन्स होते हैं और स्ट्रैंड एक्सचेंज में रोल प्ले करते हैं। ये पेयरिंग करते हैं होमोलोगस जो हमारा डीएनए मॉलिक्यूल होता है उसकी पेयरिंग करते हैं ये, और पेयरिंग के बाद दोनों जो सर्च करते हैं ये उन यहाँ पे पेयरिंग हो रही है, फिर ये सर्च करेंगे कि वहाँ पे सीक्वेंस सिमिलरिटी तो नहीं है, मतलब वो दोनों जो होमोलोगस डीएनए होंगे उनमें वो सीक्वेंस को मैच करेंगे दो मॉलिक्यूल के बीच में, और वो क्या करेंगे, बेस पेयरिंग करवाएंगे इन मॉलिक्यूल्स की। तो जो डीएनए पेयरिंग है और स्ट्रैंड एक्सचेंज एक्टिविटी है रैक ए की, वो सिंपल डीएनए सबस्ट्रेट का यूज़ करके यहाँ पे जो है ऑब्जर्व की गई। फॉर एग्जांपल डीएनए पेयरिंग एंड स्ट्रैंड एक्सचेंज जो रिएक्शन है वो बहुत ही यूजफुल रिएक्शन होती हैं जो ये शो करें कि रैक ए क्या एक्शन परफॉर्म करता है होमोलोगस रिकम्बिनेशन के टाइम पे। तो जो इम्पोर्टेंट फीचर है इन डीएनए मॉलिक्यूल्स का जिसका यहाँ पे होमोलोगस रिकम्बिनेशन के टाइम पे स्ट्रैंड इन्वेजन होगा वो क्या है, एक तो है डीएनए की सीक्वेंस कंप्लीमेंटेरिटी। अगर दो पार्टनर मॉलिक्यूल हैं जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं दोनों जो डीएनए स्ट्रैंड है उनमें क्या होनी चाहिए, सीक्वेंस कंप्लीमेंटेरिटी होनी चाहिए। दूसरा है एक रीजन ऑफ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए ऑन एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं ये सिंगल स्ट्रैंड है, फिर ये सिंगल स्ट्रैंड है, फिर ये डबल स्ट्रैंड हो गया, फिर ये डबल। तो यहाँ पे एटलीस्ट एक जो डीएनए स्ट्रैंड है वो सिंगल स्ट्रैंड होना चाहिए ताकि ईजिली क्या उसके स्ट्रैंड एक्सचेंज उसके या स्ट्रैंड इन्वेजन उसके। तीसरा है प्रेजेंस ऑफ ए डीएनए एंड क्या 3' OH एंड मीन्स एक टेल प्रेजेंट होनी चाहिए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेल प्रेजेंट होनी चाहिए और एंड प्रेजेंट होना चाहिए कंप्लीमेंटेरिटी वाले रीजन में, जिसकी वजह से डीएनए स्ट्रैंड जो है डुप्लेक्स फॉर्म करेंगे स्ट्रैंड इन्वेजन के बाद में। तो यहाँ पे जो हम देख सकते हैं ये क्या है, सबस्ट्रेट शो किए गए हैं रैक जो हमारा ए स्ट्रैंड एक्सचेंज प्रोटीन है उसके लिए। यहाँ पे 3 पॉसिबल स्ट्रक्चरल कम्बिनेशन शो किए गए हैं जो डीएनए की बेस पेयरिंग में रोल प्ले करते हैं और स्ट्रैंड एक्सचेंज में जो है रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हम
जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारी ये सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड है, तो दोनों में रिकम्बिनेशन के बाद यहाँ पे ये हाइब्रिड जो डीएनए फॉर्म हो गया और ये सिंगल स्ट्रैंड में रह गया। ये सिंगल स्ट्रैंड या डबल स्ट्रैंड है, फिर यहाँ पे जो है रिकम्बिनेंट इसने फॉर्म कर दिया है। उसके बाद ये दोनों डबल स्ट्रैंड है, तो दोनों में रिकम्बिनेशन हो रही है। तो डिफरेंट और मैकेनिज्म शो किए गए हैं और डिफरेंट वेज शो किए हैं जिसके थ्रू रैक ए जो है वो स्ट्रैंड एक्सचेंज करता है रिकम्बिनेशन प्रोसेस के टाइम पे और स्ट्रैंड इन्वेजन करता है। यहाँ पे वीव शो किए गए हैं रैक ए फिलामेंट के। जो ये पिक्चर है ये शो कर रही है इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स का, जो फुल्ली और पार्शली यहाँ पे बाइंड किया गया और कोट किया गया है रैक ए प्रोटीन्स के थ्रू। और जो अनकोटेड डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी शो किया गया है कि कैसे जो डीएनए है वो इलोंगेट हो जाता है जब रैक ए बाइंडिंग होती है। जैसे कि यहाँ पे हो रही है रैक ए बाइंडिंग हो रही है तो वो इलोंगेशन हो रही है। और जो यहाँ पे ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है हाईयर रिजोल्यूशन व्यू किसका, रैक ए फिलामेंट का, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ की इमेज के थ्रू ही जनरेट किया गया है। ये शो कर रही है कि जो रैक ए जो ये शो कर रही है कि जो रैक ए जो फिलामेंट है ई कोलाई का वो कैसे बाइंड होता है डीएनए से। जैसे ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि ई कोलाई के केस में कैसे रैक ए बाउंड होता है। और ये जो पिक्चर है ये शो कर रही है कि कैसे जो है रेड 51 जो कि होमोलॉग होता है रैक ए का वो बाइंड होता है ईस्ट के केस में। दोनों में 30% होमोलॉगी मिलती है रैक ए और रेड 51 में। रेड 51 जो है ईस्ट की बात करें वो यहाँ पे कैसे बाउंड हो रहा है रैक ए के केस में, यहाँ पे क्या बाउंड हो रहा है, दोनों का कंपैरिजन शो किया गया है यहाँ पे। और ये जो हमारा व्यू है ये है हायर रिजोल्यूशन व्यू जो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू जनरेट किया गया है। यहाँ पे क्या शो किया गया है, यहाँ पे शो किया गया है कि जो एक टर्न है हेलिकल फिलामेंट का वो शो किया गया कि एक टर्न कैसे होता है। और ये इंडिविजुअल सब यूनिट शो की गई हैं रैक ए फिलामेंट की जो डिफरेंट कलर्स में शो की गई हैं। अगर हम एक्टिव फॉर्म की बात करें, एक्टिव फॉर्म किसकी, रैक ए की, वो होती है प्रोटीन और डीएनए फिलामेंट। और जो रैक ए होता है वो हुज होता है, वेरी करता है साइज में। उसके फिलामेंट कंटेन करते हैं अप्रोक्सीमेटली 100 सब यूनिट ऑफ रैक ए, 100 सब यूनिट ऑफ रैक ए एंड 300 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए। और फिर वो फॉर्म करती हैं एक्टिव फॉर्म रैक ए की। प्रोटीन कितने होंगे, 100 प्रोटीन सब यूनिट होंगी और 300 यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड होगा डीएनए का। और प्रोटीन डीएनए फिलामेंट फॉर्म करके एक्टिव फॉर्म कर देंगे। जो फिलामेंट है वो अकोमोडेट करता है 1, 2, 3 और इवन 4 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। और जो स्ट्रक्चर है, अगर डीएनए की बात करें हम, डीएनए का स्ट्रक्चर विद इन द फिलामेंट वो बहुत ही एक्सटेंडेड होता है, एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का फिलामेंट के अंदर एज कम्पेयर विद आइदर अनकोटेड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड बी फॉर्म डीएनए हेलिक्स की बात करें तो उसके कंपैरिजन में जब रैक ए बाउंड कर जाता है तो वो एक्सटेंडेड फॉर्म होती है डीएनए की। जो एडजेसेंट बेस होते हैं जब रैक ए बाउंड करता है तो उस टाइम में डीएनए के अंदर जो एडजेसेंट बेस हैं उनके बीच में डिस्टेंस अबाउट 5 एंगस्ट्रॉम होती है। और जो अगर हम बी फॉर्म की बात करें तो वहाँ पे 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 5 एंगस्ट्रॉम है वो ज़्यादा है, मीन्स जो डीएनए है वो एक्सटेंडेड फॉर्म में है जब हमारा रैक ए बाइंड करता है। और यहाँ पे जब एक्सटेंड कर रहे हैं डीएनए को तो जो डीएनए की लेंथ है वो 1.5 फोल्ड तक क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर रैक ए फिलामेंट के अंदर सर्च किया जाता है होमोलोगस डीएनए सीक्वेंस को और एक्सचेंज किया जाता है डीएनए स्ट्रैंड को। जब एक फिलामेंट फॉर्म होता है
सब यूनिट जो होती हैं रैक ए की, वो कोऑपरेटिवली बाइंड करती हैं। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं, कोऑपरेटिव बाइंडिंग का मतलब होता है एक सब यूनिट जैसे डीएनए पे बाइंड करेगी तो वो दूसरी सब यूनिट्स की बाइंडिंग करवाएगी, इसलिए उसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग कहते हैं। और जो बाइंडिंग है रैक ए की, वो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए पे ज़्यादा फास्ट होती है एज़ कम्पेयर टू डबल स्ट्रैंड डीएनए। तो जो नीड है यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंड डीएनए की, वो बहुत ही ज़्यादा है ताकि रैक ए जो है वो बाइंड कर सके। और जो फिलामेंट ग्रोथ करते हैं रैक ए की बाइंडिंग के थ्रू, वो ग्रो करते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इस तरह सच दैट ए डीएनए स्ट्रैंड दैट टर्मिनेटिंग इन 3 प्राइम एंड इज मोस्ट लाइकली टू बी कोटेड विद रैक ए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 प्राइम एंड जो फॉर्म करता है सिंगल स्टैंडर्ड एंड और टर्मिनल टेल जो फॉर्म करता है डीएनए, वो कोट किया जाता है यहाँ पे रैक ए प्रोटीन के थ्रू, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रैंड ग्रो करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाले डायरेक्शन में। तो यहाँ पे डबल स्ट्रैंड रिपेयर मॉडल की बात करें कम्बिनेशन के लिए की, तो वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप क्या होता है, स्ट्रैंड इन्वेजन होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सब यूनिट है रैक ए की, वो ज्वाइन करती है फिलामेंट पे ऑन द डीएनए 3 प्राइम साइट। जो 3 प्राइम यहाँ पे कोई फिलामेंट फॉर्मेशन नहीं हो रही क्योंकि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में है, पर 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में यहाँ पे फास्ट फिलामेंट ग्रोथ हो रही है क्योंकि जो डीएनए का 3 प्राइम एंड है उसी पे हमारा जो रैक ए है उसकी बाइंडिंग ज़्यादा होती है कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू, और वो उसको एक्सटेंड कर लेती है। तो ये एक्सप्लेन करता है कि पोलैरिटी होती है रैक ए प्रोटीन में, क्योंकि वो हमारे 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड को फास्टली ग्रो करता है एज कम्पेयर टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड। This picture showing here the model of two steps in the search for homology and DNA strand exchange within the रैक ए फिलामेंट। तो जो होमोलोगस सीक्वेंस है उनके आइडेंटिफिकेशन करे बिना यहाँ पे स्ट्रैंड इन्वेजन नहीं होगा, स्ट्रैंड माइग्रेशन नहीं होगा, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो कैसे माइग्रेट करेगा विदाउट कम्प्लीमेंटेरिटी, किसको, एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए को, जो जिसमें क्या है 3 प्राइम एंड है और एक टेल फॉर्म की गई है जो इन्वेंट किया गया है एक डुप्लेक्स रीजन में। तो यहाँ पे वो सब कैसे होता है, स्ट्रैंड होमोलॉजी के थ्रू और बोले तो कम्प्लीमेंटेरिटी के थ्रू। तो यहाँ पे शो किया गया है प्राइमरी बाइंडिंग होती है डीएनए की, वो जैसे हमने पहले देखा कि पिन जो हो फॉर्म होती है उसमें फिर यहाँ पे बाइंडिंग होती है। तो यहाँ पे प्राइमरी बाइंडिंग होती है रैक फिलामेंट की, और ये सेकेंडरी बाइंडिंग शो की गई है। सेकेंडरी बाइंडिंग होने के बाद जो प्राइमरी बाइंडिंग में एक डीएनए मॉलिक्यूल से वो बाइंड कर जाएगा, सेकेंडरी बाइंडिंग में दूसरे डीएनए मॉलिक्यूल से वो बाइंड कर जाएगा, कौन, रैक ए फिलामेंट, क्योंकि उसको क्या करवाना है, कंप्लीमेंटेरिटी यहाँ पे देखनी है ना दोनों सीक्वेंस में। तो 2 डीएनए मॉलिक्यूल के साथ यहाँ पे रैक ए बाइंड करेगा। तो फिर यहाँ पे शो किया गया है क्रॉस सेक्शन सिंगल डीएनए स्ट्रैंड का जो बाउंड हो रहा है यहाँ पे किससे, रैक ए प्रोटीन से। फिर शो किया गया है सेकेंडरी साइट जो ये टेस्ट कर रही है कि उनके बीच में कंप्लीमेंटेरिटी तो प्रेजेंट नहीं है। अगर कंप्लीमेंटेरिटी प्रेजेंट है तो यहाँ पे बेस पेयरिंग करवाई जा रही है रैक ए जो हमारा प्रोटीन सब यूनिट है उसके थ्रू। ये पिक्चर शो कर रही है डीएनए व्यू किसका, स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन का, जो प्रमोट की जाती है रैक ए के थ्रू। जो रैक ए प्रोटीन सब यूनिट होती है वो क्या करता है, स्ट्रैंड एक्सचेंज करता है। पर जो स्ट्रैंड एक्सचेंज रिएक्शन है वो डिफरेंट स्टेज में यहाँ पे डिवाइड की गई है। फर्स्ट क्या है, रैक ए फिलामेंट सबसे पहले यहाँ पे क्या करता है, असेंबल करता है एक पार्टिसिपेटिंग डीएनए मॉलिक्यूल के साथ, और जब वो असेंबल कर जाता है तो वो किसके साथ असेंबल करता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। इसलिए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पहले सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट होगा, फिर उससे रैक ए बाइंड कर जाएगा और ऐसे बाइंड करेगा कि वहाँ पे प्रेजेंट हो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए टेल। तो ये जो रैक ए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कॉम्प्लेक्स है ये क्या फॉर्म कर देता है, एक एक्टिव फॉर्म कर देता है रैक ए फिलामेंट की, जो फिर सर्च करते हैं होमोलोगस सीक्वेंस के लिए और बोले तो कंप्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस के लिए। फिर जब कंप्लीमेंटेरिटी सीक्वेंस वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो यहाँ पे हेटेरोडुप्लेक्स डीएनए जनरेट होता है रैक ए के थ्रू, और फिर वो क्या करता है, जब जो हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे रिकम्बिनेशन, जब उनका रिजोल्यूशन किया जाता है तो एक रिकम्बिनेंट डीएनए और सिंगल स्ट्रैंड डीएनए यहाँ पे
हमारा जो है जनरेट हो जाता है। मीन्स जब हेटेरोडुप्लेक्स फॉर्म होगा तो इसका एक स्ट्रैंड यहाँ पे बाइंड कर जाएगा, तो ये एक सिंगल स्ट्रैंड डीएनए जनरेट हो जाएगा। और हेटेरोडुप्लेक्स जो है उसका रिजोल्यूशन होगा तो वो क्या देगा, एक रिकम्बिनेंट डीएनए दे देगा। तो यहाँ पे जो शो किया गया है वो शो किया गया है कि कैसे स्ट्रैंड एक्सचेंज की जाती है इस रैक ए प्रोटीन्स के साथ। ये रैक ए प्रोटीन होता है ना, इसके होमोलॉग्स प्रेजेंट होते हैं इन ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। जैसे रैक ए प्रेजेंट होता है यू बैक्टीरिया में, ई कोलाई में। रेड ए प्रेजेंट होता है आर्किया में। रेड 51 प्रेजेंट होता है हमारे यूकैरियोट्स में। DMC फर्स्ट प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। बैक्टीरियोफेज में प्रेजेंट होता है UVSX प्रोटीन। तो ये सब क्या है, होमोलॉग्स हैं किसके, रैक ए प्रोटीन्स के। ये भी फिलामेंट फॉर्म करते हैं जैसे हमारा रैक ए प्रोटीन फिलामेंट फॉर्म करता है, और सेम इसी की तरह एनालोगस बिहेवियर शो करते हैं, इसी की तरह वो फंक्शन करते हैं। कुछ फीचर्स हैं प्रोटीन के वो थोड़े बहुत डिफरेंट हो सकते हैं, बट मोस्टली ये जो प्रोटीन्स हैं ये होमोलोगस प्रोटीन्स होते हैं टू दिस रैक ए फिलामेंट। फिर हमारा रैक ए के फंक्शन के बाद आता है RUVAB, जो क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रांच माइग्रेशन का काम करते हैं। तो हम अभी समझेंगे कि RUVAB कॉम्प्लेक्स कैसे स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज करेंगे हॉलीडे जंक्शन को और प्रमोट करेंगे ब्रांच माइग्रेशन। जब स्ट्रैंड इन्वेजन वाला जो स्टेप है जो रैक ए हमारा कंप्लीट कर देता है, तो दो रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल वो कनेक्ट किए जाते हैं यहाँ पे किसके थ्रू, ब्रांच के थ्रू, जिस ब्रांच को हम क्या बोल देते हैं फिर, हॉलीडे जंक्शन बोल देते हैं। जो मूवमेंट है साइट की, मूवमेंट ऑफ साइट ऑफ दिस ब्रांच रिक्वायर एक्सचेंज ऑफ डीएनए बेस पेयर बिटवीन टू होमोलोगस डीएनए डुप्लेक्स। और जो सेल इनकोड करती है प्रोटीन्स को, जो ग्रेटली स्टिमुलेट करते हैं इस ब्रांच माइग्रेशन को। RUV अगर हम प्रोटीन की बात करें जो कि सेल्स में प्रेजेंट होता है, जो स्टिमुलेट करता है इस ब्रांच माइग्रेशन को, वो हॉलीडे जंक्शन एक हॉलीडे जंक्शन को प्रमोट करने वाला प्रोटीन है, और एक स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन है जो रिकॉग्नाइज करता है डीएनए जंक्शन को और हॉलीडे जंक्शन को रिगार्डलेस ऑफ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता, ये तो बस एक हॉलीडे जंक्शन को रिकॉग्नाइज करता है। कौन, RUVA प्रोटीन्स। RUVA जो है वो रिकॉग्नाइज करता है और बाइंड कर जाता है हॉलीडे जंक्शन से, और उसके बाद ये रिक्रूट करता है RUVB कॉम्प्लेक्स को, RUV प्रोटीन्स को। पहले RUVA बाइंड करता है हॉलीडे जंक्शन से, फिर RUVB को वो क्या कर देता है, रिक्रूट कर देता है। और RUB क्या है, एक हेक्सामेरिक ATPase है, हेक्सामेरिक ATPase है, और ये हेलिकेज की तरह एक्ट करता है। जैसे हेलिकेज डीएनए रेप्लिकेशन में एक्ट करता है, वैसे ही RUVB एक्ट करता है। RUB ATPase एनर्जी प्रोवाइड करता है, एनर्जी क्या करने के लिए, बेस पेयर के एक्सचेंज करने के लिए और ब्रांच माइग्रेशन के लिए और मूव करने के लिए डीएनए ब्रांच को। ये एनर्जी जो है वो जो इस एनर्जी की ज़रूरत होती है ब्रांच को रैपिडली मूव करने के लिए एक डायरेक्शन में। हम स्ट्रक्चरल मॉडल की बात करें RUVAB कॉम्प्लेक्स की हॉलीडे जंक्शन पे, तो वो एक टेट्रामर फॉर्म करता है RUVA का। RUVA क्या है, एक टेट्रामर है, 1 2 3 4 सब यूनिट है, विद हेक्सामर ऑफ RUB 1 2 3 और 3 इसकी बैक साइड में होंगी, 3 यहाँ पे और 3 बैक साइड में। तो ये दो हेक्सामेरिक सब यूनिट बाइंड होती हैं RUB की, और ये डीएनए एक्सचेंज प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारी पिक्चर है ये शो करिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर RUVA टेट्रामर का। और जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेट्रामर प्रेजेंट है, और ये जो डायग्राम है ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो कर रहा है RUB हेक्सामर के साथ। तो यहाँ पे जो टेट्रामर है RUVA वो बाइंड कर रहे हैं 4 फोल्ड सिमेट्री के साथ, 4 फोल्ड सिमेट्री 1 2 3 4 किसकी, जंक्शन की और हॉलीडे जंक्शन की। दो हेक्सामर जो हैं RUVB के वो अपोजिट साइड में बाइंड है RUVA के, और वो 4 फोल्ड मोटर वो फंक्शन कर रहे हैं एज ए मोटर
टू पंप डीएनए, जैसे कि हम देख रहे हैं वो मोटर प्रोटीन की तरह फंक्शन कर रहे हैं और पंप कर रहे हैं डीएनए को इस जंक्शन के थ्रू कि वो मूव कर सके और माइग्रेट कर सके। तो जो RUV हेक्सामर हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। वो क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे डीएनए की मूवमेंट करवा रहे हैं और थ्रेडिंग करवा रहे हैं थ्रू दिस कॉम्प्लेक्स। जब हमारा RUV-A और B का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो RUV-C का फंक्शन स्टार्ट होता है, जो एक रिजोल बेस है और रिजोल्व करता है हॉलीडे जंक्शन को। तो ये कैसे क्लीव करता है स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड को हॉलीडे जंक्शन पर, कैसे फिनिश करता है रिकम्बिनेशन को, उसको समझते हैं। रिकम्बिनेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हॉलीडे जंक्शन को रिजोल्व करना बहुत ज़रूरी है दो रिकम्बाइनिंग डीएनए मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो जो मेजर हॉलीडे जंक्शन रिजोल्विंग एंडोन्यूक्लियस होता है वो होता है हमारा RUV-C, और ये डिस्कवर किया गया था और प्यूरिफाई किया गया था बेस्ड ऑन इट्स एबिलिटी टू कट डीएनए जंक्शन। डीएनए जंक्शन क्या होते हैं, हॉलीडे जंक्शन, जो कौन क्रिएट करता है, RAC-A विट्रो में, इन विट्रो सेल। एविडेंस जो है वो इंडिकेट करते हैं कि कि इसका जो फंक्शन है वो कंसर्ट करता है किसके साथ, RUV-A और RUV-B के साथ। अगर हम रिजोल्यूशन स्टडी करें बाय दिस RUV-C प्रोटीन तो वो तब होती है जब RUV-C जो है वो रिकॉग्नाइज कर जाए किसको, हॉलीडे जंक्शन को, इन ए कॉम्प्लेक्स। किस कॉम्प्लेक्स के साथ, RUV-A और RUV-B कॉम्प्लेक्स के साथ। और स्पेसिफिकली ये निक करेगा और कट करेगा एक किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड पे। जिन स्ट्रैंड्स की क्या होगी, सेम पोलरिटी होगी, वहाँ पे ये कट करेगा। ये कैसे कट करेगा, स्पेसिफिकली निक्स टू ऑफ द होमोलोगस डीएनए स्ट्रैंड्स दैट हैव द सेम पोलरिटी। तो दिस क्लीवेज रिजल्ट इन डीएनए स्ट्रैंड दैट टर्मिनेट विद 5' फॉस्फेट एंड 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, 5' ग्रुप आ जाएगा जिसमें फॉस्फेट होगी और 3' आ जाएगा जिसपे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा, और फिर वो लाइगेज एंजाइम के थ्रू क्या कर दिए जाएंगे, ज्वाइन कर दिए जाएंगे। डिपेंडिंग ऑन विच पेयर ऑफ स्ट्रैंड इज क्लीव्ड बाय RUV-C, जो रिजल्टेड लाइगेटेड रिकम्बिनेशन प्रोडक्ट होता है वो या तो स्प्लाइस प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट, या फिर वो क्या होता है, पैच टाइप प्रोडक्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। स्प्लाइस क्या होता है हमारा क्रॉस ओवर, और पैच क्या होता है, नॉन क्रॉस ओवर प्रोडक्ट। दी स्ट्रक्चर जो हमारा RUC का है वो यहाँ पे शो किया गया है। ये शो कर रहा है क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसका, RUV-C प्रोटीन का, जो एक रिजोल्वेज है। और ये शो कर रहा है एक मॉडल जिसमें शो किया गया है RUV-C जो डाइमर है, एक डाइमर प्रोटीन है, वो कैसे बाइंड करता है हॉलीडे जंक्शन के साथ और कैसे उसमें निक क्रिएट करता है और उसको क्लीव करता है और रिकम्बिनेंट डीएनए जो है वो फॉर्म करता है। जो यहाँ पे RUV-C प्रोटीन है ना, वो मोडेस्ट सीक्वेंस स्पेसिफिसिटी के थ्रू डीएनए को कट करता है और क्लीव करता है। जो क्लीवेज होती है वो ओनली उस साइट पे होती है जो एक कंसेंसस सीक्वेंस को कंफर्म कर देती है, और वो कंसेंसस सीक्वेंस क्या होता है, 5' A T मीन्स यहाँ पे टी की जगह ए भी हो सकता है, एडेनिन भी हो सकता है, या फिर थायमिन भी हो सकता है, यहाँ पे ग्वानिन भी हो सकता है, साइटोसिन भी हो सकता है। तो वो किस सीक्वेंस को यहाँ पे एज ए कंसेंसस सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है, 5' A और G और C, इस सीक्वेंस को वो रिकॉग्नाइज करता है। क्लीवेज होता है यहाँ पे आफ्टर सेकेंड T इन दिस सीक्वेंस, ये जो सेकेंड T है इसके बाद क्लीवेज यहाँ पे होता है। जब भी किसी सीक्वेंस में ये कंसेंसस सीक्वेंस फ्रीक्वेंटली पाया जाता है किसी भी डीएनए सीक्वेंस में, तो वहाँ पे जो क्लीवेज हो रहा है, जो सीक्वेंस पाया जाता है ये कंसेंसस सीक्वेंस अबाउट 64 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर के बाद ये कंसेंसस सीक्वेंस रिपीट होता जाता है किसी भी पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल में। तो ये जो मोडेस्ट सीक्वेंस सिलेक्टिविटी है किसके थ्रू, इस RUV-C प्रोटीन के थ्रू ये इंश्योर करती है कि एटलीस्ट सम ब्रांच माइग्रेशन
occur before resolution, कि कुछ branch migration हो जाए resolution process से पहले. Without this sequence selectivity, RUVC might simply cleave Holiday junction as soon as they are formed, thereby restricting the region of DNA that participate in strand exchange. So guys, this was all about prokaryotic homologous recombination. If you really like my video, then please thumbs up, and if you have any query, then write in the description box given below, and please subscribe to my channel and support me. Thank you so much for watching. In my upcoming video I will talk about mating type switching, and after that I will talk about site specific recombination and the replicative recombination. So please wait and keep patience. If you really like my videos, then please keep watching my next or upcoming videos. Thank you so much again.